Hello, here's Shondipan again. Um, I thought that I would be making some more videos on different topics, some interesting topics. But recently, I have actually saw a video on SBI Apprentice 2020, and also I have actually downloaded the notification too from one of the websites, and I saw uh, many interesting things. I mean, this was totally a different program at all. Now let's come to this SBI Apprentice 2020. I really know what is the reality of this program. Definitely. This is not, first of all, let me get you clear. This is not SBI Junior Associate. So don't get mistaken by it. This is apprentice program which is conducted by NAPS, NAPS, National Apprentice Promotion Scheme. Okay, so this is a something uh, this is a central program which is actually conducted. Now I have actually seen many negative views about this program. um, let us first talk about this program. After that, I will be going for the pros and cons because this is all about your career. People who will be preparing for this really tough exam, they will not be wasting their valuable time on it. Hmm? Okay. So let's come to this. What is apprentice? Apprentice is nothing but you are a trainee. So it's a program where you will be given a training for 3 years. 3 years. Just get me clear, for 3 years. Okay. In reality, which was actually told, which I really heard from one of the videos too, and I have actually seen it. Many people have actually had some really bad experience, and it was like this, that they were chucked out from the institution just on a day, after a day, and they were actually relieved from you know the institution. Now let me actually get you something clear. Okay, this is actually the notification. Okay, this is the notification, and I am reading something from the notification which I saw. मैं आप लोगों को बहुत बार कह चुका हूं कि जब आप साइन करेंगे ना तो आप लोग एवरीथिंग सब कुछ पढ़ेंगे. ओके, similarly when you are actually going for any exam, I always say see the syllabus and also see the notification very properly. Okay, I can see two stark differences in this in this notification, which I have actually not seen in SBI Junior Associates. Okay, I will not talk anything about the negatives. Okay, at this point, क्या क्या उन लोगों को करवाया गया है, क्या किए हैं वो लोग. Okay, you will know it better than me. Okay, but let me get this clear. Okay, because this is actually tarnishing the institution too, because यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. Okay, let me just get to that paragraph actually, because it has been written very properly, and एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि आप लोग इसको पढ़े नहीं अच्छे से. यू सी, आई एम रीडिंग आउट दिस क्लियरली. SBI shall have no obligation to offer regular employment to apprentices during and or after the completion of apprenticeship period. After completion of apprenticeship period, candidates will be relieved from the respective work area. इसका मतलब क्या हुआ कि SBI का कोई भी ड्यूटी नहीं है, या कोई भी यहाँ पे वो लोग ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि वो अप्रेंटिस को कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप जो ये प्रोग्राम है, इसके प्रोग्राम के बाद उसको परमानेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको कैंडिडेट्स विल रिलीव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव वर्क एरिया, उनको वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा. इसका मतलब है कि यू आर नॉट अ जूनियर एसोसिएट, यू आर एन अप्रेंटिस. ओके, कह सकते हैं आप. हाँ, जो एक्चुअली मैं सुना. ओके, कि सस्ते में काम करवा लेना. हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा है. इसीलिए
इसीलिए मैं अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हाँ, ओके, ये वीडियोस थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आई एम फ्रॉम SBI माई सेल्फ एंड आई विल ऑल्सो शेयर विद यू many things whether you should be going for this exam or not, okay, because I really care for your future. Okay, okay, यहाँ पे और भी एक चीज़ लिखा हुआ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड कैंडिडेट्स विल बी रिलीव फ्रॉम द रेस्पेक्टिव वर्क एरिया, मतलब आपको हटाया दिया जाएगा। अच्छा, पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अप्रेंटिस एक्चुअली यहाँ पे कैसे उसका नियोग कैसे किया गया है, हाउ इट हैज़ एक्चुअली बीन टेकन, ओके। जो कहीं पे भी नहीं मैं देखा जे में जो है कि जूनियर एसोसिएट में कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लेट मी जस्ट गेट यू वेरी क्लियर, डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं पे भी ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से, आपका हर एक नहीं कहूँगा पर शायद मुझे तो इतना मालूम नहीं है कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, पर मतलब ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे नियोग किया गया है। सो आई से यू वेरी क्लियरली, if your age is too high, you are like let's say 26, 27, 28, don't go for this exam. Yes, आपको अगर मिल गया then don't join this, okay. Join if you are a bit low, okay. आप अगर आपको बहुत ही आपका मतलब आपका मजबूरी है तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मतलब जैसे कि आप लोगों को शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पे काम क्या करवा जा रहा है। यू आर नो वन बट यू विल बी फीलिंग द वॉइड। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे वो जॉब रोल्स को मैं सुना, ओके, सेल्स करने के लिए आप लोगों मतलब बहुत लोगों को भेजा गया। नंबर 2, फील्ड ऑफिसर का जो काम होता है उसको फिलअप करने के लिए किया गया है। अच्छा, जो काम ठीक नहीं किया है शायद ये करवाया गया है। अब देखिए क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें नहीं पता है, पर शायद अगर किया गया है तो ये अच्छा नहीं किया है। दैट इज़ जो हम लोगों का वाउचर्स होता है ना, तो वाउचर्स जो हम लोगों का बनता है उसको अगर किसी वो काम अगर किया गया है जो एक मैसेंजर का काम होता है कि मैसेंजर, पहले आप शायद अभी मैसेंजर नहीं होता है, अभी कॉन्ट्रैक्चुअल, ओके, अभी कॉन्ट्रैक्चुअल होता है जो मतलब वर्कर्स होते हैं यहाँ पे सब मतलब आई थिंक इट्स सब स्टाफ, ओके ओके, सब स्टाफ, कॉन्ट्रैक्चुअल सब स्टाफ्स होते हैं, तो उनका जो काम हो रहा है वो काम अगर यहाँ पे करवाया जा रहा है अगर, हाँ, अप्रेंटिस से, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड, दैट इज़ नॉट रियली गुड, ओके। बट अगर किया जा रहा है देन इट्स बैड। अब देखिए ये ब्रांच टू ब्रांच डिफर कर रहा है, ओके, हाँ, मैं आपको ये भी आपको मैं कह रहा हूँ ब्रांच टू ब्रांच डिफर कर रहा है। अच्छा, इसको छोड़ के भी और एक है कि ये आप लोगों को ये 10 to 5 जॉब नहीं है। आपको यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन पे यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बहुत कुछ। यहाँ पे वर्क टाइमिंग्स नहीं लिखा हुआ है, ये सब नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। आप जब वहाँ पे जब अप्रेंटिस करके वहाँ पे जब आप साइन किए, क्या आप पढ़े वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ था? Anybody will give me dislikes for this, but the truth is that कि आप जब इसको भर रहे, आप जब इसको कर रहे, आपको इसको ये प्रिपरेशन कर रहे, you have to understand that apprentice and junior associate are not same, okay. Now let's come to another point, okay, कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कह दिया कि आपका अगर एज ऐसा है तो कीजिए, अगर नहीं हो बट देन यू कैन गो फॉर पी, ओके। आई विल मेक अनदर वीडियो, I am actually promising you that why this apprenticeship program was actually brought into this, actually it was brought, इसको क्यों इसको लाया गया, मैं आपको इसका रियलिटी बताऊंगा, तब आप जाके आप समझेंगे कि एक्चुअली ये क्यों किया गया था, ओके, या क्यों अब इसको स्टॉल शायद किया गया है। इसके बाद हाँ, ये शायद अभी हो रहा है, ये एग्ज़ाम होगा या नहीं मालूम नहीं है, पर जाए जितना तक है कि इसका अगर नोटिफिकेशन निकल गया है तो डेफिनेटली ये होगा। बट मेक योर माइंड वेरी क्लियर दैट वेदर यू वुड ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन और नॉट। परीक्षा दीजिए, इसका एग्जाम दीजिए, ओके। नंबर 2 आई एम सेइंग इसका एग्जाम दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम जब देंगे देन यू विल एक्चुअली गेट टू नो दैट वेदर यू आर एक्चुअली एलिजिबल टू बी इन दैट इंस्टीट्यूशन और नॉट।
जो एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पूरा एकदम सेम होगा। ओके, और एक है चीज़, ओके, मैं आपको कहूँगा ये सब कुछ मतलब वो जो बाद में है कि इसको क्यों लाया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि दे विल बी they are eligible to give JIB and CIB एग्जाम। ओके, JAIIB एंड CAIIB, ये एग्जाम के बारे में आपको लोग शायद सुने होंगे। दिस एग्जाम ये दो एग्जाम्स वो लोग दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बाद में और एक जो वीडियो मैं बनाऊंगा वहाँ पे मैं आपको कहूँगा, ठीक है, कि मैं ये दो तीन चीज़ें मैं आपको कहूँगा। अप्रेंटिसशिप, ओके, हाँ, ओके, देन आई विल कम टू JIB, आई विल कम टू CIB, ओके। और इसका मकसद क्या था कि इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को क्यों लाया गया, मैं ये भी आपको कहूँगा। ओके, सेकेंडली, ओके, शुड यू गिव, यस, अपियर फॉर द एग्ज़ाम्स अपियर कीजिए, उसका प्रीलिम्स दीजिए, उसका मेंस दीजिए। देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत नीडी पीपल भी हैं। आप लोगों को जिन लोगों का लोन्स है आप कर सकते हैं। ओके, आप लोगों का लोन्स चूक जाएगा, पर यस, मेक योर मेंटली प्रिपेयर दैट यू आर नॉट एंटरिंग इनटू अ फुल परमानेंट जॉब, इट्स अ ट्रेनिंग जॉब। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक कैसे काम करता है। देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, बैंक कैसे काम करता है आपको अब सिखाया जाएगा। मतलब आपको ये सीखने को मिलेगा कि बैंक में एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम होता है, ये सीखेंगे। अच्छा नहीं लगा छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, इट्स योर लाइफ। ओके, अच्छा क्या, अच्छा, स्टाइपेंड मिलेगा। आप देखेंगे अरे भाई मुझको ऐसा मिल रहा है और यहाँ पे जूनियर एसोसिएट है वो भी मेरे ही लेवल पे ऐसे ही आप लोगों का मतलब सेम है, हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं। नो, यू आर एक्चुअली नॉट द सेम। ओके, आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट इन द सेम लेवल। ओके, आप उससे नीचे भी नहीं है, उससे ऊपर भी नहीं है। आप एक ऐसे जगह में हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप ट्रेनिंग को जॉब के साथ उसको एक्चुअली मिक्सिंग अप कर दे रहे हैं। ओके, देखिए, जो वहाँ पे करवाया जा रहा है ना, आप कहेंगे कि एक ग्रेजुएट लेवल, एक जो है ग्रेजुएट लेवल का एक मतलब एक कैंडिडेट को वो काम एक्चुअली करवाया जा रहा है, वो ठीक है या भूल है। अब अगर मैं CHSL MTS के बारे में कहूँ तो आप सोचिए, MTS में एक्चुअली कितने ग्रेजुएट लोग भी देते हैं। हाँ, MTS में आपका वो आप शायद देखे होंगे कि वहाँ पे जो आपका जो मतलब जॉब रोल्स क्या होता है, स्वीपर, गार्डनर, ऐसे। और वहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का मतलब बहुत लोग देते हैं वहाँ पे भी। हाँ, कहेंगे कि सैलरी अच्छा है, फुल टाइम है, बहुत कुछ है, पर आपको अगर किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं गार्डनर हूँ या है। देखिए, वो टोटली डिफरेंट बात है। पर एक्चुअली जो है कि यहाँ पे जो मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, आपको जानने को मिलेगा कि आप कैसे बैंकिंग काम कर रहे हो। ओके, यू कैन आफ्टर दैट यू कैन एक्चुअली लीव द जॉब, डेफिनेटली यू कैन लीव द जॉब, पर आपको शायद नहीं लीव कोई करना पड़ेगा। ओके, आपको मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपको शायद लीव नहीं भी कर सकते आप। ओके, पर मैं इसके बारे में आपको कहूँगा कि इसको क्यों लाया गया था। हाँ, और बहुत लोग एक्चुअली बाहर चले गए, बहुत लोग ये छोड़ दिए उसको। क्यों छोड़ दिए, डेफिनेटली एवरीवन नोज दैट, बिकॉज दे वर पुट अंडर हाई इंटेंस प्रेशर। ओके, इससे हम लोगों को क्या सीख मिलता है, इससे हम लोगों को ये भी सीख मिलता है कि अगर आप शायद प्राइवेट में काम कर रहे होंगे तो ऐसा ही एक्चुअली होगा। हाँ, इससे शायद अच्छा हो सकता है, थोड़ा बुरा भी हो सकता है। हाँ, पैसा ज़्यादा मिलेगा। ओके, डेफिनेटली। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इसको छोड़ के और जो बातें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आप इसको अपने CV पे ऐड कर सकते हैं एक्चुअली कि हाँ, आई हैव एक्चुअली डन अप्रेंटिसशिप इन एंड आई हैव क्रैक दिस एग्जाम, दिस टफ एग्जाम, आई हैव जॉइंड इट। ओके, अगर आपको बहुत ज़रूरी नहीं हो देन डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ओके, डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम इफ़ यू रियली नीड इट। ओके, तो इसको इसीलिए लाया गया है कि आपको अगर नीड है तब। ओके, गो फॉर एक्चुअली SBI PO, गो फॉर जूनियर एसोसिएट्स, इनका भी आप लोगों का जो है आपका एक मतलब जो एग्ज़ाम्स है ये भी आपका निकलेगा। हाँ, मालूम है मुझको कि बहुत लोगों का शायद एज फैक्टर के लिए
ये मैं आप लोगों को मैं कहा कि रीथिंकिंग ऑफ एज फैक्टर, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, हाँ, कि एज के ऊपर आपका कैसे आपका सोच, आप कैसे आपको उसका आपका दिमाग आप कैसे आपको चलाना है, उसको कैसे आपको काबू में लाना है, या आप क्या करेंगे, ओके, क्योंकि उसको भी आपको सोच के रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट मेरा जो ये नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो में बनाऊंगा इसके बाद कि एक्चुअली इसको क्यों लाया गया है, हाँ, क्योंकि आप तो देख रहे हैं ये, मुझको देख रहे हैं, ये पर्दा देख रहे हैं, पर्दे को हटा दूं तो आप देख सकते हैं उसके पीछे एक्चुअली क्या उसका मकसद है। हाँ, कुछ अच्छा मकसद भी है, बुरा मकसद तो होता ही है, पर मैं अच्छाई को लेके ही यहाँ पे मैं हर वक्त चलता हूँ। देखिए, मैं आपको अच्छाई जो है वो मैं आपको कह दिया, आप CBS भी एक्सेस कर सकते हैं। सोचिए, CBS एक्सेस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात होते हैं, हाँ, CBS एक्सेस करना भी, क्योंकि CBS देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, CBS का काम सीखना। अगर बाद में जाके आप किसी और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहेंगे तो वहाँ पे जा सकते हैं। यू कैन से हाँ, इतना मैं इतना क्यों तब मतलब मेरा वक्त बर्बाद करूँ। अब देखिए, आप बैंकिंग का एग्ज़ाम्स दे रहे, एग्ज़ाम्स देते 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 आपको शायद ये मिल गया, इसके बाद भी आप जारी रखिए, PO का एग्ज़ाम्स के लिए जारी रखिए, इसके लिए एग्ज़ाम जारी रखिए। आपका अगर बहुत ही डेप्थ ऑफ, एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ये कि आपका बहुत ही मतलब आपको शायद पैसे का ज़रूरत है, लोन्स ले चुके हैं आप शायद, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। बट इफ़ यू डोंट नीड इट सो मच, आप घर में आप अच्छे से रह सकते हैं 2-3 साल, फिर भी आपके पास है, रिलैक्सेशन पीरियड है। जो लोग आप लोग यहाँ पे शायद कैटेगरी से है, ओके, तो आप उसको उसके लिए आप इतना जल्दबाजी मत कीजिए इस पे, हाँ, ठीक है। तो डोंट एक्चुअली, आई विल नॉट से रूइन योर करियर, ओके, दिस इज नॉट रूइनिंग योर करियर, ओके, इट इज़ एक्चुअली यू कैन से इट्स अ यू नो इट्स एन एक्सपीरियंस, ओके। तो जो एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हैं, यू कैन कम, बाय बाय।